फिलोसोफर किंग। तो अगेन इसको कैटेगरिकल वे में मैं डिवाइड कर देता हूं कि जीवन भर याद रह जाए आपको, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन हम लोग अपने आप से पूछ लेंगे। व्हाई फिलोसोफर किंग? किंग पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे हम, क्यों फिलोसोफर किंग, ठीक है। दूसरा चीज, हु कुड बी द फिलोसोफर किंग। दूसरा सवाल हम ये पूछेंगे, TAYLOR टेलर। थर्ड, what power does a philosopher king hold? किस तरह का पावर इस भाई साहब के पास है? बड़ा ही फिलोसोफर किंग चल रहा था। क्या है उसका? यही बहुत बड़ा मुद्दा है, याद रखिए। ढेर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया इसी पे, ठीक है। हाँ, और हाउ टू आइडेंटिफाई अ फिलोसोफर किंग। अरे क्या हो रहा है? ठीक। चलो कोई नहीं। क्या था? हाउ टू आइडेंटिफाई फिलोसोफर किंग। ऑल राइट, सो आवर टॉपिक इज फिलोसोफर किंग। So many things have been said about, okay, यार रुक जाओ। हाँ, so our topic is your philosopher king. So we have spoken about so many theories propounded by Plato. So his central theme in his book, The Republic, is to give a perfect theory related to ideal state, which he wanted to establish through the system of justice. But the other element that was needed for effective functioning of Plato's ideal state was the identification of the philosopher king. As I told you previously as well, many questions have been asked from this section. Therefore, we will be talking about it in a very segmented way so that you will have a coherent picture of this topic. Okay? So, these 4 questions we are going to take up. Okay? Based on that, we will understand his theory. So, the first question is, what is why a philosopher king? Second question is, who could be the philosopher king? What power does a philosopher king hold? And the last one is that how to identify the philosopher king. So let's come to the first question, that why philosopher king? This is a pertinent question. So do remember that he wanted to create an ideal state, as I have already mentioned it. Ideal state. ठीक है? He wanted to create an ideal state. But according to Plato, anything ideal, it will reflect the true reality. कोई भी चीज आइडियल होगा वो ट्रू रियलिटी दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए, आइडियल स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, यू नीड अंडरस्टैंडिंग
ऑफ ट्रू रियलिटी। आपको एक ट्रू रियलिटी जो है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आइडिया एंड सोल में, याद करिए, ठीक है। ट्रू रियलिटी समझना पड़ेगा यह बनाने के लिए। ट्रू रियलिटी को कैसे समझा जाएगा? सिर्फ ज्ञान से, नॉलेज से ही समझ सकते हैं, ठीक है, नॉलेज। एंड व्हेन यू हैव स्टडीड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन propounded by Plato, you have understood that what kind of system he have proposed. His system was based on certain aptitude that people hold. Okay? And finally, after so much layer of distillation, it reached to the conclusion that only handful of people who are, according to his theory, who will graduate, that is 50 years of education, and they will be called as philosophers. ठीक है। So the philosopher comes here, from here, his theory of education. Philosopher has the complete knowledge of the reality. That's why they are able to understand what kind of things that is needed to establish the ideal state. ठीक है, आइडियल स्टेट। तो उसका पर्पस था आइडियल स्टेट बनाना, जिसके लिए एक राजा चाहिए था, और वो राजा कैसा होगा? जो ज्ञानी राजा होगा। ज्ञान किसके पास रहता है? फिलोसोफर के पास रहता है। रियल ज्ञान फिलोसोफर के पास रहता है। तो फिलोसोफर शुड बिकम किंग, ये इनका आइडिया था। यहां तक में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, हु कुड बी द फिलोसोफर किंग। तो पहली बात तो हमने जो पहला एक्सप्लेनेशन दिया उसी में ये दे दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको कैटेगरिकली देखें कि हु could be the philosopher king, अगर इस क्वेश्चन को हम आंसर करें तो दो तीन कैटेगरी आप खुद ही बता सकते हो, जिसका कि सोल डोमिनेटेड बाय रीजन, ठीक है। आइडिया एंड सोल, उसमें बताया कि दे आर द गोल्ड कैटेगरी, ठीक है। पहला चीज वो होगा, they are the symbol of knowledge. दूसरा चीज है कि सिंबल ऑफ नॉलेज है। नॉलेज होगा तभी आप परफेक्ट रियलिटी समझ सकते हैं, नहीं तो समझ ही नहीं सकते, ठीक है। एंड द थर्ड इज नो प्रॉपर्टी एंड नो फैमिली। ओके, कम्युनिज्म ऑफ property and family you have already studied. So when you see who are the people who could be qualified as philosopher king, then ये चीज आपको दिखेगा उसमें, ठीक है, ये चीज आपको दिखेगा वहां पे। ऑल राइट, चलो अब देखो, लेट्स कम बैक लिटिल बिट, forget about this particular question, we will answer this question, but before that let's jump to this question, how to identify the philosopher king। पहले philosopher king को ढूंढ ही लेते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं, ठीक है। how to identify philosopher king, ढूंढेंगे कैसे भाई? तो बोलता है कि so many people will graduate 50 years of education, you know, 50 years of education, after 50 years of education, 50 साल एडुकेशन के बाद कौन लोग आ गए? फिलोसफर्स आ गए। होल्डर ऑफ क्या है? ये नॉलेज है, विजडम नॉलेज का होल्डर है फिलोसफर्स। लेकिन सो मेनी पीपल विल बी देयर ना, एवरी ईयर सो मेनी पीपल विल ग्रेजुएट। 300 आदमी मान के चलो हो गया, तो हाउ टू चूज दैट वन पर्सन? किंग कैन बिकम only one person could become the king, isn't it? तो कैसे ये होगा? अब ये आदमी, आप सोचो कि एक यहां पे आप दो एंगल से सोचो कि फिलोसोफर है जिसको कि रियलिटी का पता है, तो उसको क्या ये रियलिटी का पता नहीं है कि जो पावर होता है वो एक इल्यूजन है?
And if you are a king, then power is all you are going to get. So if power is illusion, and the philosopher who according to Plato understand the true reality, are they not understanding that power is illusion? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है, तो बोलता है कि हां ये जानता है पावर इज इल्यूजन. प्लेटो खुद ही कह दिया दूसरे लोगों को बोलने से पहले ही कि हां इसको पता है कि पावर इल्यूजन है. That's why this suo moto will never go and say that let make me a philosopher king. Then again the question comes, we are again back to the square one, that who will become the philosopher king? तो यहां पे प्लेटो कहता है that the people have to come and ask a philosopher to become king. यहां पे पीपल को आना पड़ेगा और फिलोसफर किंग. फिर बोला कि पीपल तो बहुत सारा चीज डिमांड करता है. तुम तो फिलोसफर हो, ट्रू फिलोसफी जानते हो, तुम सब चीज तुम्हें ज्ञान है, रियलिटी क्या है, हेवन से तुमने देख क्या है, आइडियल क्या है, रीजन डोमिनेट करता है तुम्हारे में, और ये इल्यूजन भी है. फिर क्यों वो लेगा, वो इतना इंफीरियर चीज क्यों लेगा? वो शासन करना तो बहुत छोटा चीज हो गया ना, पावर इज एन इल्यूजन. तो बोला कि द फिलोसोफर विल एक्सेप्ट एज अ स्टेट ड्यूटी, स्टेट राज का ड्यूटी मान के फिलोसोफर एक्सेप्ट करेगा किस चीज को, उस पोजीशन को, किंग का पोजीशन को. समझ गए? सब क्वेश्चन का आंसर इसी ने दे दिया, प्लेटो ने. यही पे क्रिटिसिज्म होता है प्लेटो का, और कहा जाता है, ध्यान सुनो, यही पे क्रिटिसिज्म होता है प्लेटो का, और यह कहा जाता है कि द रिपब्लिक इज अ टेस्टिमनी, a pressing testimony to the people of the Athens, so that the people of Athens could come and ask him, request him to become the philosopher king. वो खुद ही फिलोसफर किंग बनना चाहता था, अपने को ही मानता था फिलोसफर किंग. समझ गए? अपने को ही फिलोसफर किंग मानता था, और वो चाहता था कि हम ही को आके रिक्वेस्ट करें और मैं राजा बन जाऊं. क्रिटिसिज्म में कहा जाता है. समझ गए? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई फिलोसफर किंग. नाउ लेट्स गो बैक एंड लेट्स आंसर टू दिस क्वेश्चन. व्हाट पावर डज अ फिलोसफर किंग होल्ड? पावर. पावर. ओके, पावर क्या है? तो पहला चीज, एक चीज जान लीजिए कि ही विजुअलाइज, ठीक है, ही नेवर विजुअलाइज रूल ऑफ लॉ. याद रखिए, यहां पे बोला कि एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर. For him, there is no scheme of rule of law को नहीं मानता था. वो एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर मतलब लॉ यहां है और तुम यहां हो, कहने का मतलब तुम्हें जो सही लगता है वही करोगे. जबकि लॉ होगा, ठीक है, मान के चलो इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन. Even if Modi ji doesn't want to fight election, still he is forced to fight election because the law says so. This is what the law of the land says. So now the question is that why Plato is not so much into law. Law has so many benefits. This idea of constitutionalism has so much of benefits.
then why he is not for law but for one person who has absolute power, और उसको पूरा पावर है पूरा रूल करने का. ठीक है, एब्सोल्यूट पावर, कोई रुकावट नहीं. मोदी जी पे कितना रुकावट है, लेकिन बोलते उसको कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, जो मन में है वो करो. एब्सोल्यूट पावर का मतलब वही होता है. ठीक है, क्यों कहता था ऐसा? तो कहता था कि बिकॉज एब्सोल्यूट पावर, बिकॉज योर अकॉर्डिंग टू प्लेटो योर दैट नॉलेज जो है ना, नॉलेज जो है, नॉलेज इज सुपीरियर टू लॉ. लॉ से ज्यादा सुपीरियर क्या होता है? नॉलेज होता है. बात भी सही है एक तरह से देखा जाए तो नॉलेज है उस तरह से अगर देखा जाए. ठीक है, सो नॉलेज मतलब रूल ऑफ नॉलेज. रूल ऑफ नॉलेज लिख लो, ये रूल ऑफ लॉ. फाइन. पहला इसने आर्गुमेंट ये दिया कि रूल ऑफ नॉलेज इज सुपीरियर टू रूल ऑफ लॉ. दूसरा चीज बोलता है कि बड़ा अच्छा बात बोला ये चीज, इफ द रूलर इज वर्चुअस देन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ ही कहीं एक एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है. ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन इज अननेसेसरी. ठीक है, कि अगर जो राजा है वो वर्चू का राजा है, वर्चुअस है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है. एंड इफ रूलर is not virtuous, then constitution is useless. कोई फर्क नहीं पड़ता. हिटलर, he was not a virtuous person. क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, सब चीज खत्म कर दिया. क्या जबरदस्त बात बोला है प्लेटो ने. सोचो कि अगर राजा वर्चुअस है तो कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है, रूल ऑफ जस्टिस होगा वहां पे. लेकिन अगर राजा वर्चुअस नहीं है, इफ द किंग इज नॉट वर्चुअस, देन कॉन्स्टिट्यूशन कोई मतलब ही नहीं है. चेंज कर दो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को चेंज कर दो, खत्म कहानी. संविधान तो एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है इन दैट सेंस देखा जाए तो. ये भी ठीक बोला. फिर बोला कि लॉ जो है वो साइलेंट रहता है बहुत जगह पे, लेकिन जो किंग है, राजा है, ज्ञान जिसके पास है, नॉलेज जिसको है, वो हर जगह मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है. लॉ तो बहुत जगह रहता ही नहीं उसके बारे में. और बहुत जगह तो लॉ भी जस्टफुल लॉ नहीं होता है. जो स्लेवरी का लॉ था वो जस्टफुल लॉ नहीं था. ठीक है, ये से बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एथिक्स में भी यूज कर लेना, ध्यान रखो. ओके, ये चीज है. उसके बाद बोला, और भी कुछ बोला, मैं लिखाऊंगा तो लिखाऊंगा ही, बता देता हूं. देन ही सेड, ध्यान सीखना, then he said that law demonstrate that wisdom of average लोगों का wisdom जो है क्या है? law है according to Plato. और जो एवरेज लोगों का जो wisdom है वो है law. उस तरह का इंफीरियर वर्जन अगर आप एक फिलॉसफर किंग पे इंपोज कर देते हो, ही विल नॉट बी एबल टू फंक्शन वेल. ही विल ऑलवेज फाइंड हिमसेल्फ टू बी ट्रैप्ड.
then his idea, whatever that ideal state's idea is, he will not be able to establish that. सो एवरेज चीज उस पर डाल दे, एक सुपरलेटिव जबरदस्त खूबसूरत इंसान है, ब्यूटीफुल माइंड है, उस पर आपने एवरेज चीज दे दिया कि एवरेज जगह में काम करो, मीडियोकर जगह पे काम करो, फैसिलिटी नहीं मिलता, क्या कोई चीज वो इजाद कर पाएगा? कभी नहीं। अमेरिका भाग जाते हैं इंडिया से जो लोग को रिसर्च करना है, क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे जो चीज है, बारिंग फ्यू, अभी तो थोड़ा अच्छा भी हुआ है, पहले तो और खराब था, यहां रिसर्च डेवलपमेंट कुछ ज्यादा खास था ही नहीं, तो बोलता था यार यहां है ही नहीं फैसिलिटी, हम क्या करेंगे, मेरा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, लेट्स गो टू अ प्लेस जहां पे कि हमें मिल पाए वो फैसिलिटी। तो वही बोल रहा है कि अगर लॉ थोप दोगे तुम राजा पे भी, तो राजा फंक्शन नहीं कर पाएगा। लॉ क्या है? एवरेज विजडम है, कहता है प्लेटो। और लास्ट चीज बोलता है कि द फिलोसफर किंग हैज ट्रू विजडम। ट्रू विजडम है उसके पास, जिसके पास ट्रू विजडम है, अगर वो राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? और जिनके पास ट्रू विजडम है वो रियलिटी को समझता है, कभी भी पावर को एक्सरसाइज ऐसा करेगा ही नहीं जिससे ये हो। तो अब एक सवाल आता है कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर था, वो इसका मतलब नो कंडीशन, इस राजा के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है, इसका मतलब सिंपल। क्या सच था ये? तो नहीं, राजा के ऊपर भी कंडीशन था 4-5, लेकिन जो कंडीशन थे वो पॉजिटिव कंडीशंस था। क्या था वो मैं बताता हूं। कि जो पहला था कि जो वेल्थ डिस्पेरिटी है, फॉर एग्जाम्पल रूलिंग क्लास छोड़ दो तो, और जो ट्रेडर क्लास जो है वो लोग को तो वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए बोला, और उनका संख्या भी अधिक होगा, ये भी आप जानते हैं। तो बोला कि समाज में जो वेल्थ डिस्पेरिटी है, कि कोई मुकेश अंबानी है और कोई मैं हूं, ठीक है, इतना ज्यादा डिस्पेरिटी नहीं होना चाहिए। तो उसका सबसे पहला धर्म है कि वेल्थ डिस्पेरिटी कम करो। दूसरा चीज एक दिया कि स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, उसको आप क्या कर सकते, जो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, जैसा है उसको वैसा ही चलने देना है। एजुकेशन सिस्टम जो है उसको चेंज वो नहीं कर सकता है। जो एजुकेशन सिस्टम प्लेटो ने दिया है वही एजुकेशन सिस्टम रहेगा, वन कैन नॉट चेंज इट, ठीक है, वो एक इस पे था, ठीक है। और सिस्टम ऑफ जस्टिस को वो ऑलवेज फॉलो करेगा, ठीक है। और लास्ट चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं करेगा वो, ठीक है, वो ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, याद रख लीजिए वो फिलोसफर किंग। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आम लोगों के लिए है, उसको चेंज नहीं करेगा वो, एक्सरसाइज अपना पावर उसी तरह से करेगा जो कि उसको नहीं चेंज कर सकता है बाय एंड लार्ज, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन दैट वाज इम्पोज्ड ऑन फिलोसफर किंग, बट दिस ऑल दीज कंडीशंस हैव पॉजिटिव कॉनोटेशन। कोई चीज से उस फिलोसफर किंग को रोक नहीं रहा है, ये इनफैक्ट इनेबल कर रहा है कि बेटा ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, ऐसा कर रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट इट इज एज फार एज द पावर ऑफ फिलोसफर किंग इज कंसर्न। सो व्हाट हैव वी लर्न्ड? So we have learned that why he wanted a philosopher king. That was our first question. था कि नहीं था? So we answered that first question. Okay. Now who could be the philosopher king? Second question. कि भैया उनमें रीजन होना चाहिए, वाइफ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, सब चीज, नॉलेजेबल पर्सन, ठीक। देन हमने पढ़ा कि कैसे खोजेंगे फिलोसफर किंग को, तो लोग रिक्वेस्ट करेंगे, फिलोसफर किंग ढूंढ लिए। और द लास्ट थिंग दैट ही सेड इज अबाउट पावर। फॉर हिम दैट फिलोसफर किंग इज एब्सोल्यूट रूलर। अब जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये एब्सोल्यूट रूलर का, कि लॉ के बियॉन्ड है कौन? राजा। नाउ रिमेंबर इट, this is one of the reasons why he is called as the totalitarian or called as the first fascist. पहला फासिस्ट इसको इसी चीज के लिए बोला जाता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इट विल बी रिलेटेड टू आवर एनालिसिस ऑफ प्लेटो बीइंग द फासिस्ट. प्लेटो